Namaskar. Today we are going to discuss Indian political thought with the approach of MCQ questions, right? So, for the exam of CVT PG, NET JRF and SET, right? And there are other exams also. I think this video will be helpful to you. So let's start with it. So this is going to be our the sequence, right? So firstly, we are going to do with the three prominent thinkers. Gandhi, Nehru and Ambedkar, right? So mostly we get the question from these three predominantly, right? So uske baad we are going to do with the Dharma Shastra, then we are going to follow the chronology, right? So Dharma Shastra, then the Kautilya, Agansutta, Kabir, Barani, Raja Ram Mohan Roy, Pandita Ramabai, Lokmanya Tilak, Rabindranath Tagore, Vivekananda, Arvindo, Periyar, Iqbal, Vida Savarkar, right? Yamen Roy, Ram Manohar Lohia, Jayaprakash Narayan, and Deen Dayal Upadhyay. So this is going to be our sequence of this today's video. So let's start with the Gandhi. So all we know that he is also known as the because of his thoughts philosophical anarchism or enlightened anarchism, right? So his famous book is, I'm just mentioning one book because that is important for us, the political science student. That is the Hind Swaraj that was wrote in 1909. Right. So in this Hind Swaraj book, we got many important ideas, right? So he criticized modern industrial civilization or machines per se. So also because he says that the industrial revolution tha, that destroyed the human values, right? And he was critical to that the material civilization due to materialistic values, and that's why he says also that there is everything for our needs but there is nothing for our greeds, right? So उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो गोपाल कृष्ण गोखले इनका था। वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, वो उनको पॉलिटिकल गुरु मानते थे, और Gopal Krishna Gokhale only called him from South Africa, and he only advised him to go and go all around the India and मतलब country अच्छे से जानो पहचानो, right? Also रस्किन का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था अनटू दिस लास्ट, ये उनका बुक था, वो पढ़ के बैठे थे और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। देन हेनरी थोरो, उसका जो गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस का जो कंसेप्ट है वो थोरो से आता है। टॉल्स्टॉय, जो एनार्किज्म जो आता है ना कि गांधी भी स्टेटलेस सोसाइटी के एट द एंड बात करने लगते हैं, तो जो एनार्किज्म है वो टॉल्स्टॉय से आता है। या जो मैजिनी थे इटली के, उनका भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। दादा भाई नौरोजी थे, उनका भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। दादा भाई नौरोजी का इनका बुक है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट? देन द फेमस कंसेप्ट द सत्याग्रह, राइट? द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. So there are some questions like assertion or reason, right? So this sentence quite matters here, right? So for Gandhi ji, सत्याग्रह is not identical to the passive resistance. So गांधी जी के लिए जो सत्याग्रह था वो passive resistance नहीं था, right? सत्याग्रह denoted a legitimate, moral and truthful form of political action by the people against the British state power. सत्याग्रह टोटल concept क्या है मैंने यहाँ पे दी है। गांधी वे डज नॉट सीक टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बट सीक्स टू फेस इट स्क्वेयरली. सत्याग्रह इज अ क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. सत्याग्रह इज द वेपन फॉर अ स्ट्रॉन्ग वन हु इज कैपेबल ऑफ self suffering can use it. That strength can come only by following the path of truth with non-violence, as it emphasized in Satyagraha. He who has not overcome all fears cannot practice ahimsa to perfection. Just as love for Gandhi was other side of ahimsa, courage for him was the counterpart of the self-suffering. Right? So he distinguished self-suffering from cowardness. He said that where there is only one choice between cowardice and violence, I would advise violence. Truth plus non-violence plus self-suffering constitute the essence of सत्याग्रह. फिर सत्याग्रह कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट? देन द सर्वोदय, गुड फॉर ऑल. सर्वोदय इज अ टर्म मीनिंग इज यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस फॉर ऑल, राइट? The term was first coined by Gandhi only as the title of his 1908 translation, that जो Unto the Last है जो जॉन रस्किन का, उसका ट्रांसलेशन गांधी जी ने किया था, उस बुक का नाम उन्होंने दिया था सर्वोदय. देन द ट्रस्टीशिप, राइट? सो कैपिटलिस्ट क्लास एज अ ट्रस्टी ऑफ वेल्थ एंड द सोसाइटी. वेल्थ ऑफ जो सोसाइटी है उसका एज अ ट्रस्टी उनको बिहेव करना है, ना ओनर, राइट? सो वेलफेयर ऑफ मासेस उनका एक एसेंट है. एक क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा गया था प्रीलिम्स में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने बहुत हेल्प की थी ब्रिटिश लोगों की, और जो इंडियन पीपल्स थे उनको ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करने के लिए गांधी जी ने बहुत हेल्प की थी, और उसके ही बदौलत उनको कैसरे हिंद दिया गया था 1915 में, ठीक है। लेकिन बाद में जो जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ उसमें उन्होंने अपना कैसरे हिंद रिटर्न दे दिया, और नाइटहुड रिटर्न दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, सेम रीजन के लिए। उनका एक कोट है, इफ हिंदू ब्रदर्स आर कंसर्न अबाउट द काउ देन दे शुड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर कंजर्विंग काउ बट शुड नॉट हर्ट देयर फेलो मुस्लिम ब्रदर्स। ये उनका एक कोट है, पूछ सकते हैं, राइट। सो उनका जो अंत्योदय का स्कीम है ना कि गुड टू द लास्ट ओन द लीस्ट एडवांटेज पर्सन जो होगा, उनका एक फेमस कोट भी है, ये तालिस्मान जो है, कि जब आप कोई द्विधा में होंगे, वेन एवर यू आर इन द डब और वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विथ यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, मतलब जो लास्ट पर्सन है उसका अगर भला हो रहा है तो यू कैन गो थ्रू इट। सो ये उनका ये अंत्योदय का कंसेप्ट है। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा था द सत्यवीर की कथा, दैट ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती बाय गांधी जी, एक्चुअली टेकन फ्रॉम व्हिच द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो जो थे वो गांधी ने पढ़े थे और उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था गुजराती में सत्यवीर की कथा नाम से। उनका जो एंड एंड मीन्स का जो थ्योरी हमें पता है, तो गांधी जी के लिए एंड भी मैटर करता है और मीन्स भी, दोनों भी मैटर्स करते हैं। हमें पता है कि मैकियावेली के लिए एंड मैटर करता है वैसे, लेकिन गांधी जी के लिए एंड भी मैटर करते हैं और मीन्स भी मैटर करते हैं, बोथ शुड बी जस्टिफाइड, ऐसा वो बोलते हैं। In which place South Africa did Gandhiji for the first time organize the mass protest? Johannesburg आएगा। Who of the following is the view that it is not Gandhi who made सत्याग्रह but it is a सत्याग्रह which made Gandhi the महात्मा? ये आर दिवाकर इनका स्टेटमेंट है। वो आगे जाके ऐसा भी करते हैं कि he also said that the सत्याग्रह would outlive him, the Gandhian model offers norms and techniques for our age। ये उनका ही स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है नेट जेआरपी एग्जाम में। देन एक वॉलंटरी पॉवर्टी नाम का एक कंसेप्ट है कि पॉवर्टी को विलिंगली एक्सेप्ट करना है, एक सिंपल लाइफ जीना है, अपने जो मिनिमम नीड्स होते हैं उतने ही फुलफिल करने हैं। हाँ, जो कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट है वो गांधी जी का ही है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन अक्टूबर 1940? आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, सेकेंड नेहरू थे, थर्ड पटेल थे। Who said the most religious men I have met are of politicians in the disguise? I, however, who wear the guise of politicians in disguise am at heart a religious man। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी बिलीव दैट द रिलीजन शुड बी इंटीग्रल टू द पॉलिटिक्स। वो बोलते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में स्थान होना चाहिए, अगर रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं आती है तो करप्शन होगा सब जगह पे। और रिलीजन को एज अ मॉरल फोर्स वो कहते थे, एज अ मॉरल डिसिप्लिन, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन हैव मॉरल वैल्यूज दैट कैन प्रिवेंट पॉलिटिकल फ्रॉम इन्वॉल्विंग इन करप्ट एक्टिविटीज। ही बिलीव दैट द रिलीजन कैन गाइड पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज अ सर्विस, राइट। इनका एक व्यू है। उनके जो 7 सीन है ना वो भी देखिए कि उसमें ही है वो कि रिलीजन विदाउट पॉलिटिक्स इज अ जो सीन है, तो उनके जो 7 सीन है वो एक बार देख लीजिए। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड बाय गांधी। उनके जो आश्रम्स थे उनका एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, उन्होंने जो फिनिक्स सेटलमेंट फॉर्म की थी 1904 में, उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में, फिर कोचरब आश्रम 1915 में, फिर सेवाग्राम आश्रम 1935 में, इसके बीच में एक साबरमती आश्रम आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। Then Mahatma Gandhi, while presenting his views on the interdependence between morality and ethics and politics and religion, quoted that, "For me, moral, ethics and religion are convertible terms. A moral life without reference to religion is like a house built upon sand." ये उनका एक स्टेटमेंट है। Then let's start with the Jawaharlal Nehru. So here there are some famous books, as you all know that, the Discovery of India. डिस्कवर ऑफ इंडिया, इस बुक से मैंने पैसेजेस भी आते हैं, सीसेट के, यूपीएससी के सीसेट के पैसेजेस भी आते हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है एमए का और पीएचडी उसमें जो पैसेजेस होते हैं वहाँ भी डिस्कवर ऑफ इंडिया से कुछ पैसेजेस देखे हैं मैंने। तो डिस्कवर ऑफ इंडिया, देन ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, टूवर्ड्स फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, टूवर्ड्स फ्रीडम है। उसके बाद लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये उनका एक बुक फेमस है। ये कुछ उनके बुक्स है। उसके बाद उनका जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच था उन्होंने जो 14 अगस्त 1947 में दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग में, तो वो फेमस उनका स्पीच है। उसके बाद उनका एक साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का एक कंसेप्ट है वो भी फेमस है, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो दे फेमसली सेड दैट फ्रॉम अमेरिका वी आर बोरोइंग द डेमोक्रेसी एंड फ्रॉम यूएसएसआर वी आर बोरोइंग द सोशलिज्म एंड वी आर फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उनका जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट था वो जो गांधी जी का कंसेप्ट था उनसे थोड़ा या अभी जो थोड़ा अलग सा था। उनका जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है ना, कि इंडियन सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट राजू भार्गव जी कहते हैं कि प्रिंसिपल डिसिप्लिन है, मतलब
प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करना है कि अगर कोई वायोलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का या कुछ ऐसी चीजें तो ही स्टेट इंटरव्यू करेगा, अदरवाइज स्टेट इंटरव्यू नहीं करेगा। लेकिन उनका जो कंसेप्ट था, तो वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है ना कि कंप्लीट कंपार्टमेंट्स होने चाहिए बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। वेस्टर्न कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च का जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वही है कि स्टेट का रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका एक अलग डोमेन है, हमारा एक अलग डोमेन है। ऐसा उनका कंसेप्ट था कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होनी चाहिए। Who among the following wrote in the context of society today who the caste system and much that goes with are wholly incompatible, reactionary, restrictive and barriers to the progress। ये उनका जो स्टेटमेंट पूछा गया था और डिस्कोर ऑफ इंडिया से ही स्टेटमेंट आया था, ये नेहरू का स्टेटमेंट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन मेकिंग, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन पावर कमेटी एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनके भी हेड थे। देन उनका एक फेमस कोट है। और एक बात कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो उन्होंने जो हमारे अभी हमने जो प्रियम्बल एज अ प्रियम्बल जो एक्सेप्ट किया है वो उनका ही एक रेजोल्यूशन था जो उन्होंने 1946 में 13 दिसंबर 1946 में जो लेके आए थे। फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है, while we want this constitution to be as a solid and as a permanent a structure as we can make it, nevertheless there is no permanence in constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop a nation's growth, the growth of a living vital organic people। ये उनका एक फेमस स्टेटमेंट है। जब 368 आर्टिकल जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेके, उस टाइम उन्होंने एक कोट किया था, वो पूछा गया है और पूछा जा सकता है। The first attempt to develop a national plan for India came up in 1938। जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने एक कमेटी स्टेब्लिश की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे। देन उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ही कंट्रीब्यूटेड इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। सो इन 1961 नेहरू, नासिर एंड टीटो एक्सेप्टेड द फॉलोइंग 5 एसेंशियल टेस्ट फॉर नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी। वो 5 टेस्ट क्या थे? यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्स हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक पूछा था कि 1954-55 के बीच में जो हमने पंचशील एग्रीमेंट किए थे उसके 5 प्रिंसिपल्स क्या थे, और जो नेहरू थे और वहां के चाइनीज प्रीमियर जो थे उनके बीच में जो साइन हुआ था वो कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 5 पंचशील है उनके ऊपर पूछा जाता है। तो हो सकता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट के भी जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, opposition to colonialism और non membership of any military alliance और absence of bilateral military base और absence of foreign military base, ये उनके जो कुछ 5 प्रिंसिपल्स है वो देख लीजिए। और नेहरू के साथ जो और भी कोई कौन कौन थे उनके फाउंडर्स, तो जनरल नासिर थे इजिप्ट के, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के, क्वामे नक्रुमा घाना के थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे। उनकी जो 7th समिट हुई थी हेड ऑफ स्टेट्स की, ये दिल्ली में हुई थी। जो 7th समिट हुई थी नाम की, वो दिल्ली में हुई थी। इंडिया बिटवीन 10 to 12 1983 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, राइट। और 17th जो हुई थी नाम की समिट, वो जकार्ता में हुई थी इंडोनेशिया में, और सॉरी वेनेजुएला में हुई थी, और जकार्ता इंडोनेशिया नाम का हेडक्वार्टर है। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 वाज इनिशियली हेडेड बाय द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब जो इंडिया के फ्रीडम के पहले वो वाइसरॉय काउंसिल था। ऐसा पूछ सकते हैं कि उसका प्रेसिडेंट कौन था, वो जवाहरलाल नेहरू दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, प्रेसिडेंट तो खुद वाइसरॉय होगा। ग्रैन्युअल ऑस्टिन ने एक फेमस कोट किया है, उनका जो बुक है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, उसमें वो कहते हैं कि मौलाना आजाद, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद, ये 4 लोग ऐसे थे, उन्होंने अपनी ओलिगार्क की, मतलब एक एज अ ओलिगार्क उनका ही डोमिनेशन रहता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। देन लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1891 to 1956। उनकी कुछ फेमस बुक्स है, कास्ट इन इंडिया जो उन्होंने 1916 में लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। एक एक्चुअली स्पीच देने वाले थे वो, जात पात तोड़क मंडल जो लाहौर के पास था, कराची लाहौर, तो वहाँ वो स्पीच देने वाले थे, ठीक है। तो स्पीच तो उन्होंने देने नहीं दिया, वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो उसके बाद उन्होंने उसको स्पीच का ही एक बुक में कन्वर्ट किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हु आर द शूद्रास 1946, द अनटचेबल्स 1948, द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 जो उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, एंड गांधी एंड गांधीज्म, ये भी एक बुक है जिसमें वो गांधी और गांधीज्म को क्रिटिसिज्म करते हैं उनका। तो उनके कुछ जर्नल्स भी थे, लाइक बहिष्कृत भारत, दैट वाज इन मराठी, राइट। मूक नायक, फॉर मूक नायक शाहू महाराज फंडेड हिम। The Janta and Samta were the magazines. He also established many societies like Bahishkrit Hitkani Sabha in 1924, Samta Sainik Dal in 1924, Samaj Samta Sangh in 1927, Depressed Classes Education Society in 1928, right.
सो ऑल्सो ही स्टेब्लिश्ड मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्टेब्लिश की थी, फिर 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्टेब्लिश किया था, और 1956 में द रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने स्टेब्लिश की थी, और रिपब्लिक पार्टी उनका एक सपना भी था। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। गांधी ने कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? ओनली वन, दैट इज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, राइट। So there was one famous statement by him, I was born a Hindu but I will not die as one। जो उनका जो एक कोट था, वो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द बोगे ऑफ फोर्स कन्वर्शंस, तो हिंदू में वो पब्लिश हुआ था, द हिंदू उस टाइम के जो न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ था। मैन इज नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज फॉर मैन, एक उनका एक कोट है। अम्बेडकर वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, और उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे गांधी के साथ, और उन दोनों का जो बीच में जो पैक्ट हुआ था 1932 में, पुना पैक्ट नाम की फेमस है, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्स एट आर्टिकल 356 एज द सेफ्टी वॉल, अम्बेडकर ने ही उनको टर्म किया आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या है? जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं ना, आर्टिकल 356 स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का कोलैप्स हो जाता है, या हंग असेंबली टाइप जो सिचुएशन जब होती है, तब आर्टिकल 356 गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और उसके बारे में। B.R. Ambedkar said that since Indians wish to unite and develop a common culture, it is a bounden duty of all Indians to own up a Hindi as their language. An Indian who does not accept this proposal has no right to be an Indian। ये उनका एक हिंदी लैंग्वेज को लेके, हिंदी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज ट्रीट करने के बाजू में वो थे, और उसके समर्थन में उनका एक स्टेटमेंट है। भक्ति इन रिलीजन में बी रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द साउल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू द डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये उनका एक, वो क्रिटिसाइज करते हैं ना कि एक किसी आदमी की भक्त बनना या उनको फॉलो करना, मतलब एकदम। Then B.R. Ambedkar in 1955 published a text containing his view on the formation of linguistic state। linguistic state के ऊपर जो उन्होंने अपने पब्लिश किया था, उसमें वो जो कमेटी थी ना, कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिपोर्ट था, उनको कहते हैं कि द लैम्स आर द शॉन ऑफ द वूल एंड दे आर द फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कोल्ड। ये पूछा गया है पहले। द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किस आर्टिकल का कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32, जिसके बदौलत हम जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। Then here we done with our 3 prominent thinkers। We are now going to do with the chronological order, the Dharmashastra, right? So the Dharmashastras that were prepared during the period of 7th century BC to 3rd century BC, and the Dharmashastras based on them deal extensively with the Raj Dharma। So राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, और अगर कोई ड्यूटी वो नहीं फॉलो कर दे तो उसके लिए पिनास क्या होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखना है, ये धर्मशास्त्र में था, राइट। मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र का एक पार्ट है, इनिशियल राइटिंग्स में आता है। तो ऐसे मतलब धर्मशास्त्र का कोई एक ऐसे, जैसे अर्थशास्त्र का कोई एक ऐसा प्रोमिनेंट, मतलब एक इंसान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है ना कि अर्थशास्त्र के बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन उसमें हम कौटिल्य थोड़े फेमस हम जानते हैं। वैसे ही धर्मशास्त्र में बहुत सारे राइटर्स हैं, उसमें मनु और उसने लिखा हुआ मनुस्मृति एक टेक्स्ट है। तो ऐसे ही the writers of Dharmashastra mean by the dharma matlab not a religion as such, right? It is like a mode of life or a code of conduct which regulates man's works and activities as a member of the society or as an individual, and was intended to bring about the gradual development of man and to enable him to reach what was deemed to be a goal of human existence। तो उसमें दंड है, दंड नीति है, कुछ पावर मतलब जो ड्यूटी होती है वो कैसे निभानी है, पनिशमेंट के क्या नियम्स होने चाहिए, ये सब धर्मशास्त्र में आता है। इसके ऊपर आज तक इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, बट यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन रीड एनी अदर सोर्सेस। लेट्स स्टार्ट विद द कौटिल्य नाउ, 375 BCE टू 283 BC, राइट। सो जो एक पॉलिटिकल रियलिज्म होता है ना, एक आयर में भी रियलिस्ट थ्योरी या रियलिस्ट अप्रोच है, जो जिसमें थ्यूसिडिडेस है, मैकियावेली या मॉर्गन था या वॉल्ट, जो रियलिस्ट आते हैं, न्यू रियलिस्ट आते हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल रियलिज्म लाइक मैकियावेली, वेबर उनको मैकियावेली के साथ कंपेयर करता है, हाँ, जो उसका स्टेट क्राफ्ट का थ्योरी है उसको। तो उनका जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है, स्टेट ओरिजिनेटेड टू एंड द मातेसेनाई एंड द मेंटेन पीस, ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। उनका जो एक कंसेप्ट है राजमंडला और द सर्कल ऑफ किंग्स। उनको एक सप्तांग थ्योरी है उनकी, कौटिल्य की, जिसमें वो 7 ऑर्गन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो 7 ऑर्गन्स क्या है, 7 लिम्स क्या है? स्वामी, अमात्यास, जनपदास, दुर्गास,
कोशा, दंडा एंड मित्रा. दीज आर द 7 organs, right? उनके जो 72 प्रकृतिज ऑफ मंडल थ्योरी थे ऑफ स्टेट आर इनोवेटेड बाय कौटिल्य. मतलब ऐसे पूछे जा सकते हैं ना कि कितने प्रकृतिज थे, तो 72. Kautilya said the good governance and stability go hand in hand. According to him, there is a stability if rulers are responsive, responsible, accountable, removable and recallable. Otherwise, there would be the instability. For good governance, all administrators, including the king, were considered servants of the people. King भी servant होगा people का. Then the two Kautilya, the concept of रूपदर्शिका means, रूपदर्शिका मतलब क्या है कौटिल्य के थ्योरी में? रूपदर्शिका means इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स. ये पूछा गया है. In अर्थशास्त्र, how many departments of the government find mention? There are 34 departments and embezzlements of government money are 40. 34, 40 पीछे प्रकृति से कितनी थी? 72. Who said Kautilya's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism? Compared to it, Machiavelli's prince is harmless. मतलब कौटिल्य से मैकियावेली का प्रिंस कंपेयर किया जाए तो वो हार्मलेस है. इतना डेंजरस कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है. He was the first to make political economy an independent subject. He propounded a theory of politics which dealt with immediate practical concerns of polity. For the first time, he emphasized the need for a strong political control in India. उनका जो मंडल थियरी है वो इंटरनेशनल स्टेट रियल पॉलिटिक्स के संदर्भ में आता है. बेसिक प्रीमाइसेस क्या है उसका कि नेबर्स आर नेचुरल एनिमी, एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इज अ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ एनिमी इज एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन पॉलिटिक्स, पावर इज द मीन्स टू मेंटेन द स्टेट, द किंग में अडॉप्ट एनी मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द स्टेट. राइट. सो उनका जो मंडला था, जो सर्कल ऑफ किंग्स का उनका जो थियरी था, उसमें 5 फ्रेंड्स थे. अरि मित्र, अरिमित्रा, मित्र मित्रा और अरिमित्रा मित्रा. जो ये दोनों रिलेटेबल है, जो बेसिक प्रीमाइसेस में जो लिखा गया है यहाँ पे, और ये यू कैन मेक सेंस ऑफ इट. देन देयर आर 72 एलिमेंट्स ऑफ आयर एंड फॉरेन पॉलिसी इन मंडला थियरी. जो 72 प्रकृति हमने देखी है वही. कौटिल्य's फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीडियंसी. एक्सपीडियंसी भी स्लेवरी का जस्टिफिकेशन कौन करता है? एरिस्टोटल करता है. स्लेवरी एज ए नेचुरल वगैरह वगैरह, स्लेवरी एज ए नेसेसरी एंड स्लेवरी ऑन एक्सपीडियंसी. देन द अगन सुत्ता, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, मतलब पूछे ही नहीं गए हैं, 1-2 क्वेश्चंस आए होंगे. तो अगन सुत्ता वाज द 27th पार्ट ऑफ दीघा निकाय. दीघा निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट? सो इट गिव्स एन अल्टरनेट व्यू ऑफ अ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द सॉर्ट्स ऑफ द myths exemplified by the Rigvedic hymns of Purusa. It constituted a very interesting look at the Buddhist view of ancient Indian society and the hotly contested issues of the social context. तो हमें पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके जो इनिशियली जो उनका ग्रोथ है वो क्रिटिसिज्म किया है ना उन्होंने, कि जो बहुत सारे कर्मकांड थे या जो भी सुपरस्टिशियस थिंग्स थी या जो भी अनसाइंटिफिक था, अनरीजनेबल था इनका, तो वही है. लेट्स स्टार्ट विद नाउ कबीर, 15th century, right? So he was a poet, we know that. The bhakti movement, saint, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सिखिज्म के जो स्क्रिप्चर्स है, गुरु ग्रंथ साहिब और सदगुरु ग्रंथ साहिब, और वी कैन से द सेंट गरीब, तो उनके कुछ स्क्रिप्चर्स इनमें मिल जाते हैं हमें. भक्ति मूवमेंट, पंचवानी, ये उनका एक पोएट का एक कलेक्शन है जो भी है. कबीर इज कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बिकॉज ही क्वेश्चंस द बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी. बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी उन्होंने क्वेश्चन की थी. ऑल्सो उनके और कुछ राइटिंग्स है, लाइक कबीर बीजक और कबीर पराचाई और सखी ग्रंथ और आदि ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली, ये उनके कुछ और ग्रंथ है. देन द जियाउद्दीन बरानी, राइट, 1283 to 1359. सो उनके ऊपर भी इतने कुछ ज्यादा नहीं पूछे गए हैं क्वेश्चंस, बट लेट्स नो लिटिल बिट क्विकली. ही वाज द मेन पॉलिटिकल थिंकर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, खलजी एंड तुगलक्स. हिज फतवा ई जहानदारी कंसिडर्ड एज ए वैल्यूएबल पॉलिटिकल ट्रीटिस. ये जो फतवा ई जहानदारी है ना, ये बहुत सारे मैच द फॉलोइंग्स में मैंने देखा है नेट ज़ैरब के, लगभग 2-3 बार देखा है. So he considered valuable in political treatise on repolitic compared to Machiavelli's Prince and कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ये फतवाई जहानदारी माना जाता है, क्योंकि वो रूलर ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें वो डायरेक्ट्स देता है. Also wrote तारिक फिरोज शाही, फिरोज शाह's history. His fatwa, like Machiavelli's Prince, is advice on statecraft to the Muslim kings in India, which contains the political ideals to be pursued by the Muslim ruler. ये सब है उसमें. Attempted to reconcile demands of Sharias and maintenance of the state in lands of the non-Muslims. Formulated Jawabit, a secular state laws, उसने formulate किए थे. Barani's ideal king had a godlike virtues, shouldn't have 5 main qualities.
फॉल्सहुड नहीं चाहिए, चेंजेबिलिटी नहीं, डिसेप्शन नहीं, वृथफुलनेस नहीं, इनजस्टिस नहीं. सो महमूद ऑफ गजनी रिप्रेजेंट्स हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट. जो महमूद ऑफ गजनी था वो कैसे आइडियल स्टेट वो रिप्रेजेंट करता है उसके लिए. फतवा जो था उसमें 24 हिदायत दी थी, एडवाइसेस दी थी, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट्स. 24 याद रखिए. एलिमेंट्स ऑफ स्टेट लाइक क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए? नोबिलिटी, आर्मी, लॉ, जस्टिस, ब्यूरोक्रेसी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम. हिज कंट्रोवर्शियल थॉट्स उनके क्या थे? हेट अगेंस्ट लो बॉर्न, ignoble, banning education to low born, hatred for science, reason, logic, etc. and dynastic principle of stability, nobility. ये उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं. द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस और मॉडर्न इंडिया जिनको हम कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय, 1772 से 1833 तक उनकी उम्र रही है. सो उनका एक प्रोमिनेंट आइडिया है कॉस्मोपॉलिटनिज्म, राइट, प्रपोज्ड एज अ वर्ल्ड कांग्रेस. उसमें उन्होंने कॉस्मोपॉलिटिज्म को आगे किया है. कॉस्मोपॉलिटिज्म क्या है वो बाद में हम देखेंगे कि अपनी बाउंड्री भूल जाना है, कि एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज भूल के एक ग्लोबल सिटीजन बनना. तो इंग्लिश रोल को प्रेज करते थे. वो कहते थे कि गॉड सेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन फॉर इंडियन सोसाइटी. उन्होंने पहले एस्टेब्लिश किया था 1815 में आत्मीय सभा, देन द कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821 एंड देन द ब्राह्मो सभा इन 1828. राइट, सो याद रखिए तीनों. prominently Brahmo Sabha, we know that. Then there were some journals by him, the Brahmanical magazine, Bengali weekly, जो बंगाली में उनकी वीकलीज थे वो संवाद कौमुदी. देन इन पर्शियन वीकली थी उनकी मीरत अल अखबार. इन इंग्लिश वीकली उनकी थी बंगाल गैजेट. ये तीनों उनकी है. देन कौन से स्कूल कॉलेजेस उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे? हिंदू कॉलेज, दैट टाइम कॉल्ड एज द प्रेसिडेंसी कॉलेज. Then the Anglo-Hindu school and the Vedanta college. Then कौन से बुक्स एसेज उन्होंने लिखे हैं? तौफत अल मुआहिद्दीन, अ गिफ्ट टू द मोनोथियज्म, ये उन्होंने 1803 में लिखा था. द परसेट्स ऑफ जेजस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1820 में लिखा था. मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स, 1822 में लिखा था. और आपको पता ही है कि सती को बैन करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. देन द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी 1829 में. Many translations of Vedanic text and Upanishads into Hindi, Bengali and English. Then the पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 तक. उनके दो फेमस बुक्स है, स्त्री धर्म नीति एंड द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. ये उनका एक फेमस बुक है जो यूएसए में 1887 में पब्लिश हुआ था. उसको एन ऑफिशियल इंडियन फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं. वो संस्कृत स्कॉलर थी इसलिए उनको पंडिता कहा जाता है. आप देखेंगे आप पंडिता रमाबाई. देन आर्य महिला सभा उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, फोरम टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड फाइट्स फॉर देम, आर्य महिला सभा. देन द श्रद्धा सदन, शेल्टर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग टू द हाई कास्ट हिंदू विडोज, श्रद्धा सदन. देन द मुक्ति मिशन, सपोर्ट एंड एजुकेशन टू विडोज, अनमैरिड वुमेन एंड गर्ल्स, अबेंडेंड वाइव्स एंड विक्टिम्स ऑफ द टेरिबल फेमेन एंड प्लेग, मुक्ति मिशन. And then the Ramabai Association in 1887 in USA. Then she adopted Christian religion at the end. Then the Bal Gangadhar Tilak, Tilak, Lokmanya Tilak जिनको हम कहते हैं, 1856 से 1920 तक. इनके कुछ फेमस बुक्स है जो पूछते हैं वो, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं. द आर्टिक होम्स ऑफ वेदास 1903 में, जिसमें वो जो आर्यंस थे वो आर्टिक लैंड से आए थे, ऐसा उनका एक थेसिस है. Then the Orion and then the Gita Rahasya. There were also famous newspapers. The Kesari was published in Marathi and the Maratha was published in English. ये थोड़ा उल्टा है, याद रखिए. मराठा जो उनका न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में पब्लिश होता था और केसरी जो था वो मराठी में पब्लिश होता था. और जिसमें आगरकर भी लिखते थे, केसरी के वो एडिटर भी थे. And you know that the Agarkar and Tilak, there was debate, political reform first or the social reform first. Agarkar was in favor of the social reforms first and Tilak was in favor of the political reform first. Tilak was one of the first and strongest advocates of the Swaraj and strong radical in Indian consciousness. He is known for his quote in Marathi, Swarajya is my birthright and I shall have it. Swarajya हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी घेणारच. Then he also founded the Deccan Education Society with many other colleagues, later named as the we also know that the Ferguson College, which comes under the Deccan Education Society in 1884. He also known for the leading the Home Rule League. There were two Home Rule Leagues, one led by the Annie Besant
and other was by Tilak in Belgaum, Maharashtra area, right? So these are some key ideas of Tilak, and we also know that his role as an extremist in Indian freedom movement, then in split of the Congress, and later the reunion of the Congress, and then the having agreement with Muslim League, then the starting of Khilafat movement and Gandhi taking over it, we know that. And Gandhi also established a Tilak Fund, and also known as the Bharatiya Santoshache Janak. Then the Rabindranath Tagore, 1861 से 1941 तक. We know that Rabindranath Tagore for Gitanjali, and he won the Nobel Prize in 1913, right? And he was the first Asian to win it. Then there are some other books like What is Nation. रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म के बहुत लिखा है, नेशनलिज्म पे उन्होंने बहुत लिखा है. और हाँ, जेएनयू में हमें फर्स्ट सेमेस्टर में उनके नेशनलिज्म की जो उन्होंने लिखा है वो था भी, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में. Then the Swadeshi Samaj, Crisis in Civilization, Gitanjali, we know that. Then the Gora, then the Ghare Baire, the Home and the World, and the चारों अध्याय, ये उनके कुछ ये नोबेल जैसा है, मतलब सॉरी नोवेल जैसा है. तो ये सब उनके कुछ बुक्स है. They known for the universal humanism or the cosmopolitanism or the internationalism, right? रिटर्न टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1919 प्रोटेस्टिंग द जालियनवाला बाग मैसकर. जैसे गांधी ने कैसर हिंद रिटर्न किया था, वैसे ही उन्होंने भी नाइटहुड रिटर्न किया है. देन द स्वामी विवेकानंदा, 1863 से 1902 के बीच में. उनका ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट बहुत फेमस है. मोनिज्म, अद्वैत वेदांता, वी नो दैट द ह्यूमन सोल इज अ पार्ट ऑफ द इन्फिनिट यूनिवर्सल ओमनीप्रेजेंट फोर्स, द ब्रह्मांड. उन्होंने वेदांत सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, और बाद में रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है. 1893 में he participated in the World Parliament of Religions at the Chicago. We know that his famous speech. There are some books written by him like Bartaman Bharat in Bengali in 1899, on India and her problems. There are some essays like Udbodhan, the East and the West in 1909, Practical Vedanta, Karma Yoga, Raj Yoga, Gyan Yoga, Bhakti Yoga. There are some other, these are some other books. Then there is some complete works of Swami Vivekananda, ऐसा एक बुक भी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व हिज बर्थडे एज द नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन जिसको हम कहते हैं, ऑन फ्रॉम 1984 ऑनवर्ड्स. दीज आर ऑल स्वामी विवेकानंद. आजकल स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स भी आते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के भी कुछ कोट्स आते हैं. तो देखिए क्या हम अब उनका पूरा जो उनका राइटिंग्स है वो तो नहीं पढ़ सकते, या नेहरू जिनके भी बहुत सारे कोट्स आते हैं, राइट, या गांधी जी के भी कोट्स आते हैं. तो क्या होता है कि कुछ कुछ फेमस कोट्स जो होते हैं वो तो हमें पता होते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारे कोट्स हमें नहीं पता होते, हम पढ़ भी नहीं सकते इतना सारा राइटिंग्स. तो हमें क्या करना है कि उनका की आइडिया क्या था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ऐसा कुछ वर्ड मिला ना तो समझ लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय का कोट है. कुछ थोड़ा हिंदुत्व लीनिंग ऐसा कुछ मिला तो सावरकर है, या कुछ सेक्युलरिज्म को थोड़ा साइंटिफिक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इगलिटेरियन की जैसे कुछ बातें कर रहे हैं तो नेहरू का कोट है. गांधी का कुछ थोड़ा एनार्किस्ट लैंग्वेज में उनके कुछ कोट्स आते हैं, राइट, रिलीजन, पॉलिटिक्स ऐसे. तो अंबेडकर की जी की जो भी कुछ कोट्स है, तो उनका एक डोमिनेंट व्यू होता है, एक आइडियोलॉजी होती है ना, कि उस डायरेक्शन में उनके यू कैन मैच इट, और यू कैन एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस. देन द अरविंदो, cultural revolution as such, spiritual revolution. So Aurobindo is mainly famous because of there are some his literary works. Life Divine, famous one, Life Divine in 1919. Then the essay on the Gita, 1922. The Ideas of Human Unity. Then the Integral Yoga, Integral Humanism दीनदयाल उपाध्याय का है, इनका इंटीग्रल योगा है. सावित्री 1940 में, लव एंड डेथ 1948 में. ये उनके कुछ बुक्स है. 1950 में उनकी डेथ हुई थी, उनका बर्थ 1872 में है. He was also extremist that time, extremist leader. Then he took sannyas from all these political activities and he went into the spiritual journey altogether. Whom did Lord Minto describe as the most dangerous man? Lord Minto ने इनको most dangerous man कहा है. Then the whom of the following said the God had appeared to him in prison and placed the Gita in his hands and made him realize the simple truths of the Sanatan Dharma. ऐसा किन्होंने कहा, कि इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, जो उनका सावित्री बुक है ना, इसके बारे में.
Who coined the slogan "No control, no cooperation"? इनका है. Sri Aurobindo launched Karma Yogin, a weekly English journal conceived as the weekly review of national religion, literature, science, philosophy, etc. And Aurobindo also launched a Dharma, a weekly Bengali journal, and his first issue came out on 23 August 1909. Idea of integrated theory of evolution was propagated by Aurobindo Ghosh. Integrated theory of evolution, यहाँ integrated yoga है, यहाँ integrated theory of evolution है. The politics of society must be based on two principles, ऐसा वो कहते हैं. First is treat others as a self, and second is help the other persons in need. किसी को जरूरतमंद को उनकी हेल्प करनी है, अदर लोगों को एज खुद को जैसे ट्रीट करते हैं उनसे ट्रीट करना है. पॉलिटिक्स में दो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ऐसा वो कहते हैं. So E.V. Ramaswamy Noyakar, also called as a Periyar, he was born in 1879 and his death year is 1973, right? So he was also considered as the father of modern Tamil Nadu. He did significant work for the upliftment of the Dravidian people and established the Dravid Kazhagam. मतलब उन्होंने पहले जस्टिस पार्टी ज्वाइन की थी. जस्टिस पार्टी टेक ओवर करने के बाद उन्होंने द्रविड़ उसका ही रिप्लेस करके नाम द्रविड़ कज़गम ऐसे कर दिया था. Right, so there is a history. Then Periyar also known as the social reformers, fixed and rights about the many aspects on the caste, religion, God, feminism. He also known for the self-respect movement. He also joined Congress in 1919 and resigned from it in 1925 because उनका ऐसा कहना था कि कांग्रेस जो है वो एक ब्राह्मणिकल पार्टी है और जो भी है. Also he opposed the Gandhi's thought on the reconstruction of Varna. और नेक्स्ट थिंकर इज मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938, जिनको पाकिस्तान का नेशनल पोएट ऐसे भी कहते हैं. लेकिन जब वो इंडिया में थे तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेरी या पॉलिटिकल जो भी है. तो वो कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका एक फेमस बुक है जो मैच द पेयर्स में पूछा गया है पहले, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम इन 1930. द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम जो 1930 में उन्होंने लिखा था. वो ही थे जिन्होंने मतलब जिना जब पूरा ये पॉलिटिकल सब मूवमेंट वगैरह छोड़ के बाहर गए थे, बाहर के देश में रह रहे थे, तो उनको वापस लेके आने में उनका रोल रहा है. तरन ई हिंद, सारे जहां से अच्छा 1904 उनका ही है स्टेटमेंट. तरन इन मिल्ली, एंथम ऑफ द कम्युनिटी 1910 में. असर ई खुदी, सीक्रेट ऑफ द सेल्फ 1915 में. रुमाज ई वखुदी, हिंट ऑफ द सेल्फलेसनेस 1917 में. पयम मशिर्क, द मैसेज ऑफ द ईस्ट 1924 में. एंड जावेद नामा, अ बुक ऑफ जावेद 1932 में. ये इनके कुछ और बुक्स है, लेकिन मोस्टली ये पहला बुक पूछा जाता है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930 में. जो उनका खुदी का कंसेप्ट है ना, वो क्या है कि स्पिरिचुअली इवॉल्व सेल्फ. उसमें 3 लेयर्स ऑफ दिए हैं उन्होंने सेल्फ के, जो फिजिकल, रैशनल और यूनिवर्सल. सॉरी. देन influenced by the humanism, universalism, Sufism and modern western philosophy. ऐसे कुछ देते हैं ना कि इसमें से किसका इन्फ्लुएंस नहीं था या उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का अपोज किया है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया, तो आप समझ लीजिए कि वो गलत है, क्योंकि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी. उनका जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी है वो ट्रांसनेशनल कम्युनिटी की वो बात करते हैं. देन द विदा सावरकर 1883 से 1966. उनके कुछ बुक्स है. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में उन्होंने लिखा था. उसके बाद मेरा आजीवन कारावास 2007 में, सॉरी 1907 में, यहाँ करेक्ट कर दीजिए 1907. सो चेंज दिस टू ईयर्स, राइट. जो उनका जो मेरा आजीवन कारावास है वो 1907 में लिखा था उन्होंने. काला पानी भी. देन द हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, जो उनका हिंदू कौन होना चाहिए, उनका कुछ है ना कि इस कंट्री को जो पुण्य भूमि माने. तो मोस्टली जो 4-5 रिलीजन आते हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, मोस्टली. तो पुण्य भूमि जो माने वगैरह वगैरह, उनका जो भी कंसेप्ट है, हु इज द हिंदू. देन द मोपला रिवोल्ट जो हुआ था केरला में, उनके ऊपर भी उन्होंने बुक लिखा है, वो लेटर पब्लिश हुआ था. ही कॉल 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. सो 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहते हैं? विदा सावरकर कहते हैं. ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोसेफ मैज़नी. ही गेव द कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र. Also he established the Abhinav Bharat in his youth stage and also in Free Indian Society in London. So ये 2 उन्होंने establish किए थे.
और वो विश्व हिंदू परिषद के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं लगभग अपने डेथ तक। और उन्होंने कभी भी आरएसएस संघ ज्वाइन नहीं किया था। ये कुछ फैक्ट्स है। देन यमन रॉय, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, गांधी, नेहरू, अंबेडकर। इनके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों के साथ साथ इनके हैं, यमन रॉय के। इनका रेडिकल ह्यूमनिज्म पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या मैच द पेयर्स, उनके बुक्स कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। 1887 उनका बर्थ ईयर है, 1954 डेथ ईयर है। तो लेट्स नो अबाउट हिम। उनका कुछ बुक्स है, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, ये उनका एक फेमस बुक है। न्यू ह्यूमनिज्म, ये उनका एक आइडिया है, बुक है। नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रिवोल्यूशन, ये भी उनका एक बुक है। गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रिवोल्यूशन। देन द 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म, ऐसे उनके आइडियाज को कहा जाता है, 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म। रोल ऑफ मार्क्सिज्म इन डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन इज अ रिपोर्ट ऑफ द लेक्चर्स एंड डिस्कशंस बाय यमन रॉय इन ऑल इंडिया पॉलिटिकल स्टडी कैंप देहरादून में, जो हुआ था 1940 में। देन हु सेड, ऐसा अगर पूछा गया कि हु सेड लाइक दिस, लाइक ह्यूमन नेचर इज द एनसेम्बल्स ऑफ द सोशल रिलेशंस, यमन रॉय आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया हु फॉर्म द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, यमन रॉय आएगा। ये क्या था, द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन क्या था? इसमें एम एन रॉय प्रपोज्ड अ अल्टरनेटिव लीडरशिप हु सीज्ड द क्राइसिस फॉलोइंग बोस री इलेक्शन। बोस, उनका जो री इलेक्शन कांग्रेस में हुआ था उस टाइम में उन्होंने 1938 में ये फॉर्म किया था। वो डिसइल्यूजन हो गए थे ना कि बुर्जुआजी डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दोनों से जब डिसइल्यूजन हो गए थे, डिसइंचेंटेड हो गए थे, तो उन्होंने ये लिखा था। उनका एक्चुअली नाम क्या था? हम यमन रॉय मतलब मानवेंद्र रॉय उनको कहते हैं, लेकिन उनका नाम एक्चुअली क्या था? नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। और जब वो यूएस गए थे, वहाँ जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, उन्होंने उनका नाम यमन रॉय कर दिया था। यमन रॉय एज यमन रॉय इंट्रोड्यूस किया था। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है कि वो नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य से मानवेंद्रनाथ रॉय कैसे बने। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस एज ऑफ नाउ, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट। एमन रॉय also said that once God is let in, there is an end to the sovereignty of man। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ रिलीजन लीड्स टू द अंडरमाइनिंग द ह्यूमन राइट्स, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। देन हु फाउंडेड द मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी? अगर ऐसा पूछा गया कि हु फाउंडेड द मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी और लेटर मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1917 में, मानवेंद्र रॉय भी, जो भी उनके फाउंडर्स थे उसमें मानवेंद्रनाथ रॉय भी थे मैक्सिकन में। और उनका जो उनका रुतबा था या जो उनका काम था, इसके वो जाने गए पूरे वर्ल्ड में। और देन रॉय मेट टू द लेनिन इन मॉस्को इन 1920 and went on to become an international ranking communist leader. Nevertheless, in September 1929, he was expelled from the Communist International Comintern फॉर वेरियस रीजन। उनके कुछ रीजंस थे कि लेनिन से उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स बन गए और उसके बाद उनको निकाला गया। देन ही रिटर्न टू इंडिया इन December 1930 एंड वाज सेंटेंस्ड टू द 6 year imprisonment फॉर हिज रोल इन द कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केस। जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, उनका भी इनका रोल उसमें रहा है, और लगभग 6 साल तक उनको इम्प्रिजमेंट में जाना पड़ा। और जब वो रिलीज हो गए, इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल इन 20 November 1936, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया along with followers, and he organized his followers into a body called League of Radical Congressmen। कांग्रेस में ही जो रेडिकल कांग्रेसमैन थे, उनका एक एज लीग उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। Then Roy formed the Radical Democratic Party of his own later. This signaled the beginning of his last phase of Roy's life, in which he developed his philosophy of New Humanism। New Humanism जब उन्होंने डेवलप किया, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एस्टेब्लिश की। In 1946, Roy established the Indian Renaissance Institute at Dehradun। Roy was the founder director of the institute. Its main aim was to develop and organize a movement to be called the Indian Renaissance Movement। उनकी एक एडिशनल जर्नी रही है ना कि बहुत सारे चेंज आए हैं। कि पहले वो एक नेशनल रिवोल्यूशनरी थे, देन वो मार्क्सिस्ट बन गए, एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो देन रेडिकल ह्यूमनिस्ट बन गए, राइट। और मार्क्सिज्म और जो भी है ना, वो मतलब वो उसको भी कुछ तौर पे लास्ट में क्रिटिसाइज करते थे कि उसका जो मार्क्स के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लाइक क्लास स्ट्रगल का उनका कॉन्सेप्ट है, सरप्लस वैल्यू को भी थोड़ा थोड़ा तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। देन रॉय गेव मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द होल स्लाइड्स, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा।
देयर जो उनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है वो क्या है एक्चुअली. He distinguished this from other humanist philosophy and termed it radical. Though Roy is influenced in his approach by the scientific materialism of Hobbes, ethics and Spinoza, a secular politics as popular by Locke, he reconciled all these in propounded a rational idea of freedom with concept of necessity. So radical humanism grew out of a dissatisfaction with existing major philosophies जो थी, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी या फैसिज्म था, कम्युनिज्म था, तो इन सबको थोड़ा डिससेटिस्फाइड होके उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म लेके आया हो. सो रेडिकल ह्यूमनिज्म सपोर्ट्स इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन लेके आना है, राइट. अल्टीमेट एम ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है? क्रिएशन ऑफ कॉस्मोपॉलिटन यूनियन ऑफ फ्री पर्संस लिंक्ड टू ईच अदर विथ रीजन एंड ह्यूमैनिटी. रीजन एंड ह्यूमैनिटी, क्रिटिकल भी रहना है और कंस्ट्रक्टिव भी रहना है. दो चीजें याद रखिए. रेडिकल ह्यूमनिज्म की 2 कोर फीचर्स है, क्रिटिकल रहना है, criticizing the existing irrelevant modes of techniques, and constructive भी रहना है, creating of order which gives highest importance to human freedom. एक क्वेश्चन है ऐसे ही, रॉय और लेनिन के बीच में जो, ठीक है रॉय ने इनका क्रिटिसिज्म थोड़ा किया है, लेकिन लेनिन और रॉय के बीच में जो डिबेट हुआ था वो किसके अराउंड था? वो कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर डिबेट हुआ था, इंडिया की जो, क्योंकि लेनिन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करता था, गांधी एंड कांग्रेस का जो यहाँ पे चल रहा था उसको लेनिन सपोर्ट करता था उस टाइम पे. सो दिस इश्यू ऑफ आर्गुमेंट एंड डिबेट बिटवीन लेनिन एंड रॉय इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस कम्युनिज्म इन इंडिया. दे डिबेटेड ओवर द स्ट्रेटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड इन फेज आउट फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ कम्युनिस्ट इंडिया. ऐसा उनका कुछ चल रहा था, तो बाद में डिसएग्रीमेंट हो गया और उनको निकाला गया इंटरनेशनल कमिटन से. सो एम एन रॉय, इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया कैसे होना चाहिए, उनका एक कंसेप्ट है. अ ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन 1944. इट वाज एंडोर्स्ड एंड रिलीज्ड इन पब्लिक डिस्कशन बाय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो उन्होंने बाद में एस्टेब्लिश की थी. और ड्राफ्ट में क्या क्या था? फर्स्ट, टू रिमूव द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियन पीपल. तो पार्टीज को निकालना है, एंड द इंडियन पीपल ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर करना है. Second, articulate a novel constitution vision by the country, and third is expedite the transfer of power from the British to the Indian people. इनके 3 stands थे, ड्राफ्ट थे, उसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया ड्राफ्ट किया था. Then the Ram Manohar Lohia. We are at the end now. There are 2-3 more thinkers. Ram Manohar Lohia 1910 से 1967. उनके बुक्स क्या कहते हैं? व्हील ऑफ हिस्ट्री, जो 1955 में उन्होंने लिखा था. उसमें वो क्लास और कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है और उससे कैसे डिस्क्रिमिनेशन आगे बढ़ता है, व्हील ऑफ हिस्ट्री में उसकी वो बात करते हैं, क्लास और कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है. देन द कास्ट सिस्टम इन 1964. देन द फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949. गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1970. देन द मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963, एक फेमस बुक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है ये, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963. इंडिया चाइना नॉर्थर्न फ्रंटियर्स. उनका एक स्टेटमेंट है, जाति तोड़ो मतलब ब्रेक द कास्ट सिस्टम, दाम बांधो खर्चा बांधो मतलब कंट्रोल प्राइसेस एंड कंजम्पशन. उनका एक 4 पिलर स्टेट है ना, जो स्टेट के वो 4 पिलर है उनके, उनका जो थ्योरी है स्टेट का, उसमें कोई क्या क्या है? सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. मतलब विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, चारों में बांधना है स्टेट का जो 4 पिलर स्टेट है. उनका जो गवर्नमेंट का आइडिया है वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन के थ्रू रिवॉल्व होता है. वो 7 रिवोल्यूशन, 7 खंबा सिस्टम, 4 खंबा सिस्टम, सॉरी, मतलब 4 पिलर ऑफ स्टेट और 7 रिवोल्यूशंस की वो बातें करते हैं. तो वो जो रिवोल्यूशंस की बातें करते हैं, तो किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना है? तो हमें जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करना है, क्लास एंड रेशियल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना है, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए रिवोल्ट करना है, खुद की इंडिविजुअल प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है, एंड सिविल डिसोबीडियंस. ठीक है. देन द लोहिया इन हिज पॉलिटिकल थॉट क्रिटिसाइज्ड. उन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया है लोहिया ने अपने लाइफ में? मार्क्सिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है, सोशलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है, एज वेल एज कैपिटलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है. तो कंफ्यूज मत होइए कि लोहिया एक सोशलिस्ट लीडर थी, इसका मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है. उन्होंने मार्क्सिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है, सोशलिज्म को भी और कैपिटलिज्म को भी. और इन तीनों को क्रिटिसाइज करके उन्होंने खुद का एक थ्योरी लेके आए थे, थीसिस लेके आए थे, वो था न्यू सोशलिज्म फॉर इंडिया, अ न्यू सोशलिज्म. He had to establish a
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1953। तो उनकी जर्नी क्या थी कि कांग्रेस में जो आचार्य नरेंद्र देव और उनके साथ जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1936 के अराउंड, 1934-36 के अराउंड, 36 में प्रोमिनेंटली, सॉरी 1934 में। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी उनमें उनका रोल भी डोमिनेंट रहा। और बाद में 1948 में जब कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के इंटरनल ऐसी कौन सी पार्टी नहीं चाहिए, तो वो अलग हो गए। बाद में वो पार्टी डिसबैंडेंसी हो गई, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की। और उनका जो डॉक्टरल थीसिस था वो सॉल्ट एंड सत्याग्रह। देन द जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979, ठीक है। सो उनका एक फेमस बुक है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो राम वृक्ष बेनीपुरी है उन्होंने इनका एक बायोग्राफी लिखा है, नेम्ड एज द जयप्रकाश, ठीक है। देन द फीचर ऑफ जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण कहते हैं। और एम एन रॉय भी बात करते हैं पार्टी हटाने की। सो डिस्पर्सल ऑफ पॉलिटिकल पावर, कांस्टेंट वॉच ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द इलेक्टिंग बॉडीज एंड कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव इलेक्शंस, ये तीनों की वो बात करते हैं। उनका जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी वो क्या है एक्चुअली, देखते चलो। is a democracy devoid of political parties and the traditional parliamentary and presidential forms of government popular across the world, वो हटाना है तीनों चीजें। The idea was first ushered by the M.N. Roy and furthered by the Mahatma Gandhi and put to the action and solidified by Jayaprakash Narayan by the infamous JP movement in Bihar, जो मतलब हुआ था। Then the JP movement was started by the JP against corruption and misrule. Views party makes the democracy corrupt and misguide the common manner। ऐसा वो कहते हैं कि जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट होती है एंड वो मिसगाइड करती है लोगों को, इसलिए उनको हटाना है। मैक्सिमम प्रोपेगेंडा नहीं करना है, मतलब पार्टीलेस डेमोक्रेसी मतलब मैक्सिमम प्रोपेगेंडा नहीं करना है। दैट वाज नॉट अ फीचर ऑफ हिज पार्टीलेस डेमोक्रेसी। मैंने इसलिए लास्ट में स्टेटमेंट डाला क्योंकि ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा गया था। आवर लास्ट थिंकर ऑफ द डे इज दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1938। उनका मोस्टली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है, ह्यूमन बीइंग एज इट द कोर ऑफ पोजीशन ऑफ द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल। इट इज अपोज टू बोथ द वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म सोशलिज्म व्हिच इट व्यूज एज द मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज incapable of dealing with native problems. So it believes that the four aims, the purusharthas of human beings are the dharma, artha, काम and moksha etc. तो ठीक है, यहाँ लगभग हमने 52 मिनट्स में ये सभी थिंकर्स कवर किए हैं। सो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को मतलब जानने से पहले कि मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि प्रोमिनेंटली जो भी की फीचर्स होंगे प्रोमिनेंट उनके कुछ, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चंस एक दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो फैक्चुअल पूछेंगे कि गांधी के जो भी मूवमेंट्स थे, चंपारण मूवमेंट है या जो भी है, खिलाफत है, बाद में जो भी है, तो उनका कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेंगे, या तो एक प्रोमिनेंट बुक्स पूछेंगे। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये स्टेटमेंट किसी का है, तो आपको स्टेटमेंट देखना होता है, उसका कुछ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखनी होती है, क्योंकि हर चीज तो हम पढ़ नहीं सकते। जो फेमस कोट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो लिख दीजिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और क्रोनोलॉजिकली याद कीजिए चीजें। आई होप आसान बन जाएगा आपके लिए ये सब। ये था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, धर्मशास्त्र से लेके दीनदयाल उपाध्याय जी तक। तो लास्ट में मैंने जानबूझ के कोट डाला है, फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तुम्हारे जो भी लाइफ के आइडियल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है और जो भी प्रिंसिपल्स है, उनको मत भूलिए। उनको भूल जाएंगे तो फेलियर आ जाएगा, हमें वो नहीं भूलना है। तो ऐसे इन सब लीडर्स के कुछ आइडियल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, इसलिए आज हम इन्हें याद रखते हैं। तो इसी के साथ मैं आज यहाँ रुकता हूँ। जो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो वीडियो किया था, और आज हमने ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियोस किए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन सेट्स है जो मैंने मतलब कलेक्ट किए हैं, कि एडिट किए हुए हैं, कि प्लेटो के ऊपर के लगभग 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है। तो ऐसे हर एक थिंकर के ऊपर मैं अभी क्वेश्चन सेट्स तैयार कर रहा हूँ, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी मैं वो ट्राई करूँगा। तो आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑल क्वेश्चन सेट्स इन
और टेलीग्राम चैनल दैट इज COATPOLM, जो टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग वहाँ है ही, तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। और क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद अगर हो सके, टाइम मिले, तो हम एक ऐसे वीडियोस बनाएंगे कि वो MCQs डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद के जो 2 वीडियोस आएंगे वो आएंगे कि कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो आएगा, और फिर कंप्लीट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर जो डिमांड बहुत सारे लोगों ने की है उसके ऊपर वीडियोस आएगा। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा कि कंप्लीट पॉलिटिकल थियरी एंड आइडियोलॉजीज, ऐसे हम कवर करते जाएंगे कि इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर एक आधा वीडियो बन सकता है तो बने। तो ऐसे हम करते जाएंगे। बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, ये सब डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, PPTs बनानी होती है, तो टाइम लगेगा। तब तक आप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए चीज़ें। और हो सकता है कि मैं सब चीज़ें कवर यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ कवर ना हुई हो, तो क्या करिए कि वो यहाँ से थीम उठा लीजिए। कि सपोज इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, आपने दीनदयाल उपाध्याय की थीम उठाए, तो जाइए उसको सर्च करिए और अच्छे से इधर उधर की चीज़ें देखिए। ऐसे ही हर एक रेडिकल ह्यूमैनिज्म एम एन रॉय की है, या जो भी कुछ फैक्ट्स है या जो भी डाटा है, किसी पार्टी का नाम है, किसी बुक का नाम है, जाइए देखिए। क्योंकि कभी कभी वो क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं, तो बहुत सारे बुक्स में मैंने यहाँ पे नहीं डाला है वो कौन सी ईयर में लिखा था, बहुत सारे बुक्स में डाला है, कुछ कुछ रह गए हैं, तो जाइए वो देखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।